Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to start with the third chapter of Indian economy. The class is for definitely class 12. So in Indian economy topic, we have already discussed about the first chapter, Indian economy on the eve of independence, means during British era, how our country has affected. After that, we have already discussed on how policies has been changed, economic planning has been set up, and they worked over different sectors of the economy to give their proper improvement. After all, when we were going through 7 5-year plan, we have critically analyzed few aspects of its achievement and few of its failure. Means kahin planning was successful, in few area it was unsuccessful. तो वो अनसक्सेसफुल होने के क्या कारण रहे, क्या ऐसे आउटकम निकल के आए उन प्लानिंग पीरियड के जिसकी वजह से हमारी कंट्री कुछ प्रॉब्लम्स में आई और उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए हमें एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च करनी पड़ी विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991. Right. So this is also called new economic policy, and that is the policy which has changed the overall scenario of our country. Right. Before it, we were known as underdeveloped country. Due to the introduction of NEP 1991, we turned into developing country. So this is the great contribution of new economic policies 1991 in our country, due to which now we are independent, self-reliant economy as well. We are actually growing at a faster rate is just because we are now integrated with other economy. Due to this integration, we are having lots of growth, lots of GDP increment in the country as well. So what is this policy, why it was introduced, what were the reason, that all we'll discuss along with the liberalization, privatization and globalization. Right. This is the three major strategy which was launched in new economic policy. So what are these strategy, how it was implemented and how it worked in our country, that all will be discussed here. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe my channel, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll tuned. In today's video, we are going to start with economic reform since 1991. Before I start, I want to give you few information. ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसका क्राइटेरिया हमारी कंट्री में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. उस वक्त हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह. राइट. हमारे प्राइम मिनिस्टर एज वेल, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट पीरियड बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. तो ही वाज द फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड ही इंट्रोड्यूस दैट प्लान इन आवर कंट्री. सो वी शुड थैंक टू आवर डॉक्टर मनमोहन सिंह हु हैज एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी, बिकॉज ऑफ विच we are now capable enough to do anything in the world, as well as we can trade all over the world. So now we are starting with what is this policy is. Here we can see economic reform in India indicates all policy measures introduced with a view to improve the efficiency level. It means these are the measures, these are the strategy which was introduced just to improve the country's efficiency in the level of production, in the level of trade, in the level of all over the sectors. Means boosting our country with the faster growth rate for all over the nation. In fact, for having trade with other nation to improve our country condition to enter into the global market, we have launched this strategy. So it is all short, we can say the policy measure introduced with the view to improve the country's status or efficiency level. हम efficient तो थे, but उसको हम properly work on नहीं कर पा रहे थे. तो उस एरिया में अच्छे से काम करने के लिए हमें इस पॉलिसी मेजर्स की जरूरत थी. राइट. सो व्हाई इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज नीडेड इन आवर कंट्री, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे, ऐसी क्या सेटबैक्स है हमारी कंट्री में, ऐसी कौन सी क्राइसिस इंक्रीज हुई जिसकी वजह से हमें ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा. तो इस क्राइटेरिया में सबसे पहले हाई फिस्कल डेफिशिएट. इन 1991 द फिस्कल डेफिशिएट रीच टू 8.4 ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 8.4% फिस्कल डेफिशिएट था. अब फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है? फिस्कल डेफिशिएट इज एक्चुअली स्टेटमेंट, इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम.
तो टोटल रेवेन्यू जो हमारी कंट्री का था वो कम हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, यानी खर्चे ज्यादा होने लग गए और इनकम सोर्सेस कम हो गई। तो उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए हमें लोन लेने की जरूरत पड़ गई, डेट लेने की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेट ट्रैप में फंस गई। सो डेट ट्रैप एक अनदर इशू हो गया हमारी कंट्री के लिए। इतनी ज्यादा उधार, इतने ज्यादा बोरिंग्स हमें लेनी पड़ी कि हमारी कंट्री को काफी कुछ उस टाइम पे क्राइसिस के फॉर्म में बियर करना पड़ा। तो हाई फिस्कल डेफिसिट वाज द अनदर कॉज ऑफ हैविंग मोर बोरिंग फ्रॉम अदर नेशन, एंड बोरिंग डेफिनेटली हम कहां से लेते थे? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। यू ऑल नो द ट्विन सिस्टर, वी कॉल देम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक द वर्ल्ड बैंक विच एक्चुअली प्रोवाइडिंग लोन एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी सभी के साथ वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इन सब के पास क्योंकि हमारे फिस्कल डेफिसिट हाई थे तो हमें बोरिंग लेना जरूरी हो गया था और हमें अबाउट 7 बिलियन रुपीस की जरूरत पड़ी थी फ्रॉम दी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो वी अप्रोच IMF एंड वर्ल्ड बैंक फॉर गिविंग अस अ लोन इन अमाउंट ऑफ 7 बिलियन, बिकॉज ऑफ विच वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल डेफिसिट. Now the second point here indicates the need for economic reform was balance of payment crisis. Our balance of payment. Balance of payment is actually a record of all debit and credit of the countries, all debit and credit or side of the countries in relation to रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यानी इंडिया का ट्रेड बैलेंस जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ एनी एक्टिविटीज विच आर रिकॉर्डेड इंटरनेशनली, मीन्स जो भी एक्टिविटी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है उन सब का अकाउंट मेंटेन होता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करते हैं। बट हमारी कंट्री को फेस करनी पड़ी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसका मतलब हमारे डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, यानी पैसा कम आ रहा था और बाहर ज्यादा जा रहा था। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया, फॉल हो गया, और वो कहाँ चला गया? दूसरी कंट्री को, जस्ट टू मेक द पेमेंट ऑफ आर इम्पोर्ट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉल आया और हमारी कंट्री को ये क्राइसिस फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट वाज फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। वी ऑल नो पब्लिक सेक्टर वाज डोमिनेटिंग अंडर द इंडस्ट्रियल सेटअप। हमने डिस्कस किया था, दैट इज द IPR पॉलिसी, जिसमें क्या था? 3 सेक्शंस बने थे, A, B, C। तो A में पब्लिक था, B में भी पब्लिक का कंबाइंड था और C में भी सुपरवाइज कर रहे थे, लाइसेंस पॉलिसी थी। तो बहुत ज्यादा एक्चुअली पब्लिक का कंट्रोल था, यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे बहुत कंट्रोल कर रही थी। एक्सेसिव लाइसेंस थी, एक्सेसिव कंट्रोल और एक्सेसिव क्या कहते हैं ना, कंट्रोल करने की वजह से जो डेवलपमेंट था प्राइवेट सेक्टर्स का वो हो नहीं पाया। और जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में नहीं आई तो लोगों को चॉइस नहीं मिली प्रोडक्ट्स की, वही सिमिलर प्रोडक्ट, वही सेम चीजें, डिमांड लोगों की चेंज हो रही थी, पर सेम प्रोडक्ट के कारण पब्लिक सेक्टर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने में फेल हो गए, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर पाई और ज्यादा डोमिनेंसी दिखाने के चक्कर में पब्लिक सेक्टर का आउटपुट, वर्क एफिशिएंसी मींस मैनेजमेंट, जो लोग काम करते थे वो सब प्रॉपरली काम नहीं किए और ओवरऑल पब्लिक सेक्टर डाउन हो गई। So there was a need to introduce the private sector with the major role. तो प्राइवेट सेक्टर को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी थी at that time. For this reason it was introduced. Next, increase in prices. It was alarming. Increase in prices, if we consider, it is in short called inflation. जब प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ती है इकोनॉमी में तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारी कंट्री ने बहुत सीवर इन्फ्लेशन उस टाइम फेस किया था, दैट वाज अबाउट 17%। कितना इन्फ्लेशन रेट था? 17%। इट वाज हाइपर इन्फ्लेशन कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी हो गई? मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन कैटेगरी, राइट। तो हाइपर इन्फ्लेशन के फेज में हम आ चुके थे। अब इन्फ्लेशन हुआ क्यों? लाइक मैंने बोला, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई गई। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अपनी मनमानी करने लगे, अपने चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे बेचने लगे, क्योंकि कंज्यूमर के लिए वैरायटी नहीं थी, कंज्यूमर के लिए ऑप्शंस नहीं था। दे वर फोर्स्ड टू परचेज अ कमोडिटी विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. For this reason, price was high. It was turned into hyperinflation. So these were the 4 major aspects because of which economic reform was introduced. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ किस तरह से इंट्रोड्यूस? लाइक आई सेड, हम डेट ट्रैप में आ चुके थे, हमें अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए 7 बिलियन रुपीस की जरूरत थी, जिसके लिए हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया।
तब IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें एक सजेशन दिया कि इंस्टेड ऑफ बोरोइंग दैट मच अमाउंट फॉर योर कंट्री एंड मेकिंग योरसेल्फ इन डेट ट्रैप, मतलब इतना पैसा लेने की बजाय और अपनी कंट्री को डेट ट्रैप यानी ऋण में घुसाने से बेटर है कि आप ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे आपकी कंट्री खुद ही ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़े, खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाए, खुद ही कैपेबल हो जाए और एफिशिएंट हो जाए। तो इसके लिए हमें दो मेजर सजेस्ट किए गए, फर्स्ट इज स्टेबलाइजेशन मेजर, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल मेजर। तो अब ये दो मेजर्स हैं क्या? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्टेबलाइजेशन मीन्स स्टेबल करना, मीन्स जो करंट सिचुएशन उस टाइम थी, जो भी सिचुएशन हमारी कंट्री उस वक्त फेस कर रही थी, उसको स्टेबल करना सबसे पहले। इसलिए हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेजर्स। किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेजर। तो कंट्री को स्टेबल करना उस टाइम पे, क्योंकि हम क्या फेस कर रहे थे? हाई फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पब्लिक सेक्टर फेलियर्स एंड इंक्रीज इन प्राइसेस। ये चारों इशू इतने हैवी थे हमारी कंट्री में उस टाइम कि इनको पहले स्टेबल करना जरूरी था। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉपर करना, फिस्कल डेफिसिट को सुधारना, प्राइस को कंट्रोल करना, ये सारी हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी बाय द अडॉप्शन ऑफ NEP पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारा पहला टारगेट बना स्टेबलाइजेशन मीन शॉर्ट टर्म मेजर। विदिन द 2 to 3 year of the implementation of this policy, we need to control our balance of payment crisis, price hike and fiscal deficit, along with to increase foreign exchange reserve, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो गया था, यानी फॉरेन करेंसी की होल्डिंग जो हमारी कंट्री करती है, RBI के पास इसके राइट्स होते हैं फॉरेन करेंसी को होल्ड करने के, तो RBI ही इसको सिर्फ मेंटेन करती है। तो फॉरेन करेंसी को अडॉप्ट करना यानी फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करना, उस टाइम पे RBI के राइट थे, लेकिन नाउ डेज क्योंकि लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेड है हमारी कंट्री में, अब तो कमर्शियल बैंक भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ डील करती है, राइट। तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक का ही ये रोल था, तो हमारी फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मेजर लिए गए। नेक्स्ट वॉज स्ट्रक्चरल मेजर। स्ट्रक्चरल मेजर एज टर्म सजेस्ट लॉन्ग टर्म मेजर, यानी कि हमारी कंट्री के हर एरिया को इतना एफिशिएंट बनाना कि वो लॉन्ग टर्म तक प्रॉपरली वो काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और बेटर अपॉर्चुनिटी लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट था हमारे NEP पॉलिसी का, विच वॉज स्ट्रक्चरल मेजरमेंट, थ्रू विच वी वर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। यानी कि उस टाइम की बात नहीं हो रही थी कि 1 या 2 साल में सब ठीक कर दें, नहीं, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, फिर अगले 20 साल तक क्या होना चाहिए, फिर अगले 30 साल तक क्या होना चाहिए। आज हम इस पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट कर चुके हैं। यस, 1991 में स्टार्ट हुई थी, वी आर इन 2020, तो इस पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप देखिए कितना कुछ बदल चुका है। 1991 से पहले एक लैंडलाइन फोन की सर्विस हमें लेने के लिए 1 साल तक वेट करना पड़ता था। आज क्या है, मोबाइल लिया, सिम डाली, स्टार्ट। पहले कमोडिटी के 1 या 2 ऑप्शन हुआ करते थे, आज मार्केट में जाओ, वैरायटी मिलती है, फॉरेन गुड्स की भी और डोमेस्टिक गुड्स की भी। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या खरीदना है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी कि हमारी कंट्री में प्राइवेट चैनल्स आए, प्राइवेट बैंक्स आई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आई और सब ने मिलजुल के काम किया और हमारी कंट्री की ग्रोथ को हायर पे लेकर आए। सो दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म मेजरमेंट। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या वो 3 पॉलिसीज थी जिसने हमारी कंट्री के ओवरऑल सिनेरियो को बदल दिया, हमारी कंट्री की ओवरऑल एस्पेक्ट को, ओवरऑल इकोनॉमी को ही चेंज कर दिया। तो वो 3 इंस्ट्रूमेंट, 3 पिलर NEP पॉलिसी के क्या है? फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन। First liberalization, then privatization, and third is globalization. Globalization is actually outcome of these two. Liberalization means policies को liberal करना, easy करना कि हर कोई उसमें easily आ सके और काम कर सके। Privatization means private sector को आने की अनुमति देना, उनको हमारी इकोनॉमी में काम करने देना ताकि वो भी इक्वली एफिशिएंट बन सके और इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही कारण था क्योंकि फेलियर हुआ था पब्लिक सेक्टर ना,
तो पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करा गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। और अगर हम आज की बात करें इस कोविड-19 फेज में, तो आप देखिए गवर्नमेंट अब रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर लेके आ गया। नहीं तो रेलवे प्योरली पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी, बट अब रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ प्राइवेट सेक्टर हैज इमर्ज। और जब प्राइवेट सेक्टर आए, बाहर से भी आए, एमएनसीज आई, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई और एफआईआई, जिस फॉर्म में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुए। एफआईआई 1992 में 13 करोड़ रुपए लेकर के आई थी हमारी कंट्री में। आज एफआईआई का प्लेस हमारी कंट्री में 1 लाख से भी ऊपर है, यानी 1 लाख रुपये मिलियन से भी ऊपर है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है लिबरलाइजेशन, हम पहले आज फोकस करने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? It implies liberating the trade and industry from unwanted government control and restriction. सिंपल सी बात कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने एक्सेसिव कंट्रोल लगा रखे थे, अननेसेसरी के रूल्स रेगुलेशन से इंडस्ट्रीज को बाउंड कर रखा था, इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करने दे रहे थे, उन सब को लिबरलाइज करना, इजी करना और इफेक्टिव बनाना। इसके लिए तो लिबरलाइजेशन इज जनरली मीन्स लिबर्टिंग, यानी फ्रीडम देना। फ्रीडम किस एरिया में देना? ट्रेड में, इंडस्ट्री में, जहां पर गवर्नमेंट ने अननेसेसरी अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, रूल्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से ये एरिया डेवलप नहीं हो पा रहे थे, इनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि प्राइवेट चैनल्स आ गए, पॉलिसी इजी हो गई, तो क्या हो गया? कंपटीशन मिलना शुरू हुआ और हर एक ने एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बेटर क्वालिटी कम रेट पर प्रोड्यूस करना शुरू करी। So this is how the market has been oriented because of this policy. तो अब इस पूरे चैप्टर में इस लिबरलाइजेशन से रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री पे ज्यादा कंट्रोल था, तो इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्म, कि इंडस्ट्री सेक्टर में गवर्नमेंट ने किस तरह से अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज किया, इजी किया, फ्रीडम दी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि अपने तरीके से अपने एरिया में काम करें, और प्राइवेट सेक्टर को आने की परमिशन दी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ेंगे फिर हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिफोर 1991 आरबीआई का रोल प्रोमिनेंट था, आरबीआई ज्यादा काम करती थी, लेकिन 1991 के बाद जब हमारी कंट्री में नई प्राइवेट बैंक्स इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आईसीआईसीआई बैंक का, यानी आईसीआईसीआई बैंक हमारी कंट्री की पहली प्राइवेट बैंक है जो इंट्रोड्यूस हुई। उसके साथ साथ कई सारी एचडीएफसी एंड सो मेनी बैंक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इन प्राइवेट फॉर्म, दोज हु आर वर्किंग। तो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, फाइनेंशियल बूस्ट हुआ, फाइनेंशियल बूम आया। तो इन सब के आने से बैंकिंग सेक्टर में कई सारे चेंजेस आए, दैट वी विल डिस्कस। फिर आएगा टैक्स रिफॉर्म, क्योंकि पहले टैक्स रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लाइक हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो टैरिफ जो पॉलिसी थी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड अफेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट लोगों के इनकम टैक्स इतने हाई थे कि लोग पेमेंट नहीं करते थे, टैक्स की चोरियां बहुत होती थी। तो उन सब में भी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, यानी इजीनेस क्रिएट करी। फिर लास्ट इज एक्सटर्नल रिफॉर्म। एक्सटर्नल रिफॉर्म हेयर विल स्टडी विद फॉरेन ट्रेड, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाहर के साथ काम करना। तो फॉरेन ट्रेड में हमने क्या इजीनेस दिखाई, ट्रेड पॉलिसी हमने कैसे बेटर करी कि हमारी कंट्री इस पूरे रिफॉर्म्स पीरियड से इस पूरे रिफॉर्म पीरियड से कुछ गेन कर पाए। यानी ट्रेड रिफॉर्म, ट्रेड बैरियर्स जो हमारी कंट्री ने लगा रखे थे उनको इजी किया, लिबरलाइज किया, डीवैल्यूएशन हुआ कंट्री में, करेंसी को डीवैल्यूएट किया गया, जिससे हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही इम्प्रूव हुए। इम्पोर्ट कम करने की कोशिश की गई और एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। सो दिस इज हाउ वी विल डिस्कस लिबरलाइजेशन in these four category in the next segment that we'll make in the another video, right? So this is all about today's session, introduction of liberalization. अब liberalization खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन एंड देन द क्रिटिकल रिफॉर्म, क्योंकि कोई भी चीज क्रिटिकली असेस किए बिना पूरी नहीं होती, दैट वी नीड टू डू। Along with we have today discussed what is economic reform in India, why it was introduced, क्या नीड थी, क्यों जरूरत पड़ी इसको लाने की, इसमें कौन से दो मेजर्स हमने यूज किए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, टू स्टेबल द कंट्री सिचुएशन दैट टाइम एंड टू इम्प्रूव द कंट्री एफिशिएंसी फॉर फ्यूचर, राइट।
और इसको इंट्रोड्यूस करने में हमें सबसे बड़ी एडवाइस किसने दी? IMF वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि हमें काफी बड़े अमाउंट की लोन की जरूरत पड़ गई थी जो हमने अप्रोच किया IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो इस तरह से हम इस कैटेगरी को पूरा पढ़ेंगे। सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। So that's all for today. I hope you all have understood the introduction part of LPG. Along with that, we have discussed about everything which is now we are facing, और हम उस चीज में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम इस पॉलिसी को आज भी यूज कर रहे हैं। हमें पता है हमारी कंट्री में कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज आज भी आ रही हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेड है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट यू ऑल नो वेरी वेल। तो इन सब की वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं। कई बार हमें कई क्राइसिस भी फेस करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसेशन ऑल्सो, जो अभी हम फेस कर ही रहे हैं। सो दैट ऑल विल बी डिस्कस वन बाय वन in these all categories. So that's all for today. We'll meet in the next video. Bye bye.